Vedantu has this Eklavya program about after JEE Mains. They post it on their community and all, and I joined this. I was eligible. This was for JEE Advanced specifically. There I realized that how far I was, like how back I was when I saw people who were like geniuses in their game. जीत क्या है? टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000 रैंक, या फिर अपने ट्रू पोटेंशियल को अचीव करने के लिए एक राह पे चलना? बेशक इस राह में कई मुश्किलें होंगी, कड़ी मेहनत भी है, एक्सपेक्टेशंस का पहाड़ जैसा बोझ है, हर दूसरे दिन हारने का डर लगा रहता है। मेरी नज़रों में इस राह पे चलना, इस जर्नी में ट्रैवल करना, यही असली जीत है। आप सब इस राह पे चल तो निकले हो, और मैं जानता हूं कि आप सबके सिचुएशंस, आप सबके रास्ते अलग अलग हैं, बट इस राह पे डटे रहने के लिए क्या चाहिए? खूब सारा सेल्फ बिलीफ, बट उससे भी ज्यादा इंस्पिरेशन, है कि नहीं? चलिए सॉल्व करते हैं इंस्पिरेशन के लिए। कैसे? कुछ आप जैसे स्टूडेंट्स की लाइफ स्टोरीज के साथ, जिन्होंने इस मुश्किल से राह पे चलते हुए जीत हासिल की और अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचे। मैं हूं पुलकित, को-फाउंडर ऑफ वेदांतु, और मैं लाया हूं आपके लिए रेगुलर डोज ऑफ इंस्पिरेशन, आपकी जीत की राह को आसान बनाने के लिए। जीत की राह के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आपके पास उत्तराखंड के एक छोटे से शहर में रहने वाले वासु खन्ना की कहानी। वासु ने इस साल JEE एडवांस क्लियर किया है और अभी IIT रुड़की में जाने ही वाला है। बट पता है चौंकाने वाली बात क्या है? वासु को 12th तक JEE के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसके पूरे एरिया में जहाँ वो रहता है JEE की कोई अवेयरनेस ही नहीं है। किस तरीके से वासु ने 12th में JEE के बारे में जाना और अपने सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस से JEE को क्लियर किया। चलिए जानते हैं वासु की कहानी के थ्रू। वेलकम वासु, एंड थैंक्स अ लॉट Thank you, sir. फॉर कमिंग लाइव विद अस एंड शेयरिंग योर अमेजिंग स्टोरी। आपकी जो इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है वासु, बाकी सब बच्चों के साथ शेयर करने के लिए थैंक्स अ लॉट। तो वासु शुरू करते हैं, थोड़ा अपने बारे में बताओ सब स्टूडेंट्स को। Yeah, so hello everyone. Myself Vasu Khanna. I'm from a very small town, Najibabad, near Haridwar. You can recognize Haridwar probably. And so I was born into this town and studied for all my education till 12th. I studied from here only. And in short, this was all about me. अरे वाह वासु, अमेजिंग। इतनी छोटी जगह से हो। तो बच्चों आपने सुना, सो वासु इज फ्रॉम अ वेरी स्मॉल प्लेस नियर हरिद्वार इन उत्तराखंड, राइट? तो वासु मुझे ये भी बताओ, मैंने सुना है कि 10th में आपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, बट अचंभे की बात यह है, सरप्राइजिंग बात यह है कि आपको JEE के बारे में 12th में पता चला, राइट? सो टेल मी मोर अबाउट इट। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि 12th में पता चलने के बावजूद आप IIT कर गए। बताइए इसके बारे में। Yes, sir. So thing was कि 10th में जब when I topped, so parents were all like, enough happy that, they believed that I will top, but they didn't believe I could top this whole city and district and all. So yeah, when in 11th, I took this mathematics because that was considered as, a subject of people who with high intelligence in our school take it. So I chose mathematics instead of choosing biology or commerce. Arts was not there in our school. So I studied in 11th standard, and never from our city or from our school, nobody has like really given this exam, or even my teachers didn't knew this. And in 12th standard when we entered, so Corona hit by that time, and it was all online now. And teachers now, like, they didn't have much facilities to teach online, so I was not really understanding what they were teaching. And then I started searching on Google about all this, the topics which I didn't understood, then came across YouTube, and I found that on YouTube people teach also. I till date I thought that YouTube was all about watching, hearing songs or watching videos and or movies. Then I came across, the first video of this JEE I came across Abhishek KR sir. He was teaching on that online Pathshala, and he was teaching kinematics there. But I was in 12th, though that was the subject of 11th. But kinematics is a chapter which most students feel like very comfortable with. कि ये तो मुझे अच्छे से आता है. And he was doing some questions. So the level of questions was way high than that's taught in schools or asked in schools. And I thought that these questions are seriously interesting. So I watched this whole 1 hour class, and then
I browsed the whole channel, and then the channel name itself had this word JEE in their name, and I came across many other channels also which had about this JEE, and then I started searching what really is this JEE and all. So this it came across that this is this exam, and approximately 10 lakh students give it every year. So I was really surprised that 10 lakh students give this, and I still didn't knew. It was more like now serious mode that I now very well understood what this JEE is and how to get through it. And so tab I started using these one shot videos and all these courses, because it was too late to watch whole chapter, and I didn't cover most of the syllabus in my first attempt, because what I did was specifically focused on few chapters which were good of mine, or like I felt interest, and did them very well. And then I gave my first attempt JEE Mains in February 2021, and by luck or by chance, I don't know how, I got the 98.13 percentile. That was in 12th standard in just few months, and it was too much overwhelming. ये कैसे आ गया? Then तो for some point of time even overconfidence struck कि I can do anything, whatever you give me, I will do. So this Vedantu has this Eklavya program about after JEE Mains. They post it on the community and all, and so I thought this is also free. Why should not I join this? And I joined this. I was eligible. This was for JEE Advanced specifically, but now I realized that how far I was, like how back I was when I saw people who were like geniuses in their game. The papers developed, the test papers they took, or the modules they gave, almost like 10%, 20% ही होता था. बाकी तो it was like ऊपर से ही जा रहा है. एंड डिस्कशन क्लासेस भी देखने का मतलब कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था, बिकॉज बेसिक्स तो कुछ ही चैप्टर से क्लियर थे, कुछ के नहीं क्लियर थे. एंड JEE एडवांस इज लाइक दे आस्क मिक्स चैप्टर्स, कुछ 11 से मिक्स करके, कुछ 12 से मिक्स करके पूछेंगे. तो मुझे 11th का अच्छा है लेकिन 12th का अच्छा नहीं है, तो मैं बीच में अटक जाऊंगा. तो वो प्रॉब्लम बहुत फेस हुआ, और फिर एक पॉइंट पर आकर तो मैंने गिव अप भी कर दिया था JEE एडवांस के लिए कि JEE मेंस तो हो गया ना, कौन सा मैंने ज्यादा तैयारी करी थी, कोई नहीं, मैं NIT में एडमिशन ले लूंगा, क्या करना है. Then I gave JEE Advanced in 12th standard. Negativity which was indulged in my mind, neither could I prepare well. I didn't qualify the exam in 12th standard, JEE Advanced exam. But with JEE Mains I had that 98.13 percentile, the best, it was the best one. And so I thought I should take admission in NIT. I was getting NIT Allahabad, chemical engineering. Even I took part in counseling and came across till 4th round. And it was like तुमको 5th round से पहले withdraw करना है अगर if you want to be eligible next year. So that 1 week was very decisive. I talked to my parents, teachers are not really there. I talked to teachers, especially when Vikas sir was there, who was like accessible from last year. I talked to him and he said that जब तुमने like इतना कम time दिया है and इतना कम effort दिया है, and that you have the energy and both, now what to really do to get the rank. I think you should give one more try. And like मेरे मन में भी था, because in academics I was really good and getting a result which is a not qualified result, then it was like it hit hard that I was trying to hide from myself कि नहीं NIT तो मिल रहा है, but honest truth was that even I was not happy because I didn't do all the work that's needed. JEE Advanced is a different game. You need a different preparation. They started from January and now I was crystal clear about what to do and what not to do. अब theory भी सही से करना, पूरा chapter पूरे से cover करना. One whole copy made of calculus itself. Earlier 10 pages whole calculus finished. This was like the year which changed the game from a not qualified rank to 5018 rank in JEE Advanced. Brilliant वासु. इतनी सारी अमेजिंग बातें बताई वासु आपने अबाउट योर प्रिपरेशन. सो फ्यू थिंग्स रियली स्टक विद मी और उसके बारे में थोड़ा सा डीप जाना चाहूँगा. सो बहुत सारे बच्चे मुझसे हमेशा पूछते हैं 12th में आने के बाद कि सर मेरा हो पाएगा क्या, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, मैं क्या कर सकता हूँ, राइट? और YouTube पे सर वीडियोस भी आती हैं कि 3 months left, can I clear it? 4 months left, can I clear it? I've seen those videos, but even the teacher, in those videos only, they can only tell कि you do this selective portion or do that selective portion, because even if it is 15 days, one can still do it in 15 days. He can't score 99 percentile of course, but he can score a percentile that will motivate him to score higher in the next attempt. So I don't really understand the point कि 12th में भी आ गए, मैं तो कहता हूँ कि ड्रॉप में भी आ गए, तब भी क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर बच्चों का ही नहीं होगा तो किसका होगा? Exactly. क्लियर तो हमें ही करना है. Exactly. मेरा तो यही था.
तो वासु जो बोल रहा है बाकी सब बच्चों के लिए भी, सो मुझे जो चीज़ यहाँ से बहुत ही क्रिस्टल क्लियर समझ में आई थ्रू वासुज अमेजिंग एक्सपीरियंसेस, यार हमेशा लाइफ में जहाँ हो, जब जागो तब सवेरा, डेफिनेटली हो सकता है। इस माइंडसेट से करना ज़रूरी है कि मैं अपना बेस्ट अटेम्प्ट दूंगा, अगर 15 डेज बचे हैं तो भी मैं अपना बेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। अगर आप वहाँ से इंप्रूव करोगे तो वो कॉन्फिडेंस देगा कि मैं आगे जाके और भी कुछ कर सकता हूँ, राइट? तो वासु का एग्जाम्पल लेते हैं। वासु ने 12th में 98 परसेंटाइल बहुत कम प्रिपरेशन से अचीव किया, बट आई थिंक दैट गेव वासु कॉन्फिडेंस कि यार मैं एक साल और दे सकता हूँ और अपने ट्रू पोटेंशियल पे जा सकता हूँ, विच इज द रैंक व्हिच वासु हैज जस्ट गॉट। अमेजिंग वासु, ब्रिलियंट। सो यू फर्स्ट टुक द ड्रॉपर्स बैच एंड देन उसके बाद आप एकलव्य का भी पार्ट बने। ड्रॉपर्स ड्रॉप ईयर, राइट? या एंड दिस टाइम एकलव्य, हाउ वाज इट एज कंपेयर्ड टू दिस टाइम? पहले तो मेरे को ये पता था कि मेरे से बेटर बच्चे होंगे वहाँ। सेल्फ आई न्यू कि ये मेरे से बेटर बच्चे होंगे, तो मेरे को कम्पीट करने की जगह उनसे सीखना है कि वो लोग टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कि वो लोग क्या करते हैं डिफरेंट, वो क्या अलग से सीखते हैं जो मैं नहीं कर पा रहा था। मैंने बहुत सारे बच्चों से टेलीग्राम पर कांटेक्ट भी किया, उनसे जितना कुछ मैं पता कर सकता था पता भी किया, बिकॉज यू नो इनिशियल इन 12th स्टैंडर्ड वन बिग मिस्टेक व्हिच आई वुड टेल टू एवरीवन कि यू नो हम सब ना अपने आप को समझते हैं कि हम ही बेस्ट हैं और जो नॉलेज हमारे पास है वो ही इनफ है, इससे ज्यादा नॉलेज एग्जिस्ट नहीं करती है दुनिया में। एंड वही, लेकिन व्हेन यू ट्राई टू कॉन्टेक्ट यू नो पीपल हु आर एट अ हायर लेवल देन यू or who have achieved better than you or doing better than you, then you really learn. And if you are open to learning, then nothing can really stop you. I have learned this very well. If you are open to learn things, then you are going to win the game. At end, you will be the winner. And so मैं start करता गया एक level. It started in January this year, and तो बहुत अर्ली स्टार्ट हो गया था जेईई मेन से भी पहले, बट आई वाज कॉन्फिडेंट कि मेरे को ड्रॉप मैंने लिया है तो वो ड्रॉप आईआईटी के लिए लिया है, मेंस के लिए नहीं लिया है, क्योंकि मेंस तो मैं लास्ट ईयर भी कर दिया था क्वालिफाई। तो मैं एकलव्य पर ही फोकस करने लग गया था ड्रॉपर बैच की जगह। अब एकलव्य पर बैच पर फोकस करने लग गया था। मैंने टेस्ट भी मोस्टली सारे टेस्ट दिए हैं। एक तो वहाँ टेस्ट बहुत ज़्यादा करवाते हैं, ये मैं हर किसी को पहले बता दूं जो भी एकलव्य ज्वाइन करना चाहेगा कि बी रेडी टू फेस एनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ टेस्ट। नो like 45-50 full tests for JEE Advanced is like 45-50 days of test alone, and then 45-50 days of analysis alone. So you should have like this 80 to 90 days, you know, free for your time to dedicate it. But once you have dedicated it, then in JEE Advanced you will never feel the heat. Like this year also JEE Advanced came very difficult. Like it was exceptionally difficult, the cutoffs told and all, but मेरे को इतना हीट नहीं फील हुआ वहाँ, बिकॉज मेरे को पता था कि मेरे को पूरा परसेंटेज मार्क्स तो लानी नहीं है, मेरे को उतना करना है जितना मेरे को आता है। एंड जो जो क्वेश्चन मिले मैं बहुत इजीली चूज करता गया, बहुत इजीली सेलेक्ट किए और बहुत इजीली कर भी लिए बिना हीट फील किए। 6 आवर्स का, बिकॉज इतने सारे टेस्ट क्या करते हैं ना, 6 आवर्स का स्टेमिना बिल्ड करवा देते हैं। जेईई एडवांस में बच्चों के पास स्टेमिना नहीं होता। लास्ट ईयर मेरे पास स्टेमिना नहीं था, सेकंड पेपर में मेरा ये प्रॉब्लम होती। लास्ट ईयर केमिस्ट्री की वजह से पेपर रह गया था, नॉट क्वालिफाइड, एंड इस ईयर मेरे केमिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क्स मेरे तीनों सब्जेक्ट्स। So that created the difference. Eklavya was like wonderful because the only batch which I used for preparing for JEE Advanced, because पूरी प्रिपरेशन वेदांतु से ही करी। एक दो रिसोर्सेज साइड बाय साइड चेक कर देगा जो इधर नहीं समझ में आया, तो वो करना भी चाहिए। अगर तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है, इट कैन हैपन बिकॉज सो मेनी रिसोर्सेज आर अवेलेबल, बट यू नो गाइडेंस शुड बी फिक्स्ड, योर ओवरऑल अंडरलाइनिंग शुड बी फिक्स्ड कि हाँ करना इसके अकॉर्डिंग है, मैं कर चाहे कहीं से भी लूँ, टेस्ट यहीं पर देना है चाहे मैं पढ़ कहीं पे भी लूँ। That was the thing. Exactly. So lots of learnings here, Vasu. On that note, Vasu एक चीज़ बताओ, जब तुमने ड्रॉप लिया तो तुम्हारा कोई प्लान बी था क्या, और वर यू वेरी क्लियर कि मुझे तो बस आईआईटी में ही जाना है? हाँ, क्या तो मैं इस पर थोड़ा इलेबोरेट करूँगा, बिकॉज दिस इज अ सीरियस थिंग। लाइक जब वेदांतु हैज दिस वन फीचर कॉल्ड पर्सनल टीचर्स। एवरी चाइल्ड हैज यू नो गेट्स वन पर्सनल टीचर कि आप उनसे बात कर सकते हो, एकेडमिक नॉन एकेडमिक, और जो भी आपको डाउट्स हैं प्रिपरेशन में। तो आई गॉट हार्दिक सर एज माय टीचर, पर्सनल टीचर, एंड यू नो दैट सेम क्वेश्चन सर व्हिच यू आस्क्ड मी कि आपका प्लान भी क्या है। ही कॉल्ड मी एंड सेड कि तुमने ड्रॉप लिया बेटा, पहले ये बताओ कि आपने ड्रॉप का क्यों सोचा, आपकी लास्ट ईयर तो ये परसेंटेज थी, तो आपने एडमिशन क्यों नहीं लिया? मैंने कहा बिकॉज सर मेरे को आईआईटी में ही जाना है, क्योंकि मैंने एडवांस क्वालिफाई नहीं किया। मेरे को आईआईटी में जाना है या आईआईटी में क्या करना है, इट वाज नॉट मच बिग थिंग। लाइक कि वो उस वक्त नहीं सोचा था कि क्या करना है। जो चीज़ सोची थी वो ये था कि पहले जेईई एडवांस क्लियर करना है,
पहले जेई एडवांस में रैंक लानी है, जेई एडवांस में रैंक लाने के बाद मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। कि जेई एडवांस एग्जाम ऐसा क्या एग्जाम होगा कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ उस एग्जाम में, ऐसा तो कोई एग्जाम नहीं है। तो आई टोल्ड सर कि नहीं सर, सेट की तुमको ये एग्जाम देने चाहिए, बिट सेट और आई सर्स हैव वन एग्जाम, मैंने लास्ट ईयर दिया था। इंटरेस्टिंगली आई गेव मोर एग्जाम्स इन 12th and in 13th I gave this one JEE exam, no other exam, because it was like crystal clear, because it was कि JEE एडवांस देना है और JEE एडवांस करना है और बहुत तमीज से और सलीके से करना है कि इसी में रैंक लानी है, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगा कि आगे क्या करना। I told him the same thing and I said him कि sir had that screenshot sir was talking about yesterday कि इसने I told him कि सर मैं लास्ट ईयर रैंक लाऊंगा और ऐसी रैंक लाऊंगा नेक्स्ट ईयर की जिसको आप कहो कि हाँ ये 0 से वहां पर पहुंचा है। एंड नाउ आई हैव दैट टू शो टू सर कि हाँ रैंक आ गई है। एनी सजेशन विथ योर नाउ दिस 1.5 years ऑफ, मैं बोलूँगा आपकी जेई की प्रिपरेशन, राइट, एंड यूर क्रैकिंग IIT नाउ, लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट इनटू IIT रुड़की, राइट, इस समय आपका क्या एक सजेशन होगा इन सब बच्चों के लिए? वन सिंगल सजेशन इज कि इवन बिफोर द डे ऑफ एग्जाम बस ये मत सोचना कि मेरा हो गया नहीं, बिकॉज तुम पेपर देने जा रहे हो और तुम्हारा ही होगा, वो 10,000 बच्चों को IIT में एडमिशन लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो 5,000 के ले लेंगे और 5,000 सीट्स वैकेट कर देंगे कि अब हम नहीं ले रहे एडमिशन 5,000 का। तुम्हारी रैंक आएगी, तुमने तैयारी करी है तो तुम्हारी रैंक आएगी और तुम IIT जाओगे। nobody can really stop you. If you want to achieve 10 things, focus on one and you will achieve all the 10. Yes. एक चीज पर फोकस करो and you will do wonders. I know. When I can do, you can do for sure. Amazing, Vasu. Such a brilliant inspiration for everybody. And by the way, to all the listeners, Vasu को भी economics मिला IIT रुड़की में, and I'm sure कि he is eyeing chemical, and I think he'll get chemical in the next round of counseling, and he will become my exact same college, same branch junior. I did chemical engineering from IIT रुड़की. Lucky sir. Lucky sir. 2005 में, right? चलो मस्त है. All the very best, Vasu. And Thank you. Thanks a lot for spending time with us and inspiring all the students. Thank you, sir. सही है. Wow, what an inspiring story. मुझे तो वासु की कहानी से बच्चों बस यही समझ में आया कि लाइफ में एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग. लाइफ में एक्सक्यूजेस की कोई जगह ही नहीं है. हम लाइफ में एक्सक्यूजेस देते हैं कि मुझे गाइडेंस नहीं मिली, मुझे रिसोर्सेज नहीं मिले, मुझे किसी ने बताया ही नहीं. बट वासु ने बिना किसी गाइडेंस के ऑनलाइन पढ़ाई करके वेदांतु के यूट्यूब चैनल से, बाद में वेदांतु के एकलव्य प्रोग्राम से अपनी कड़ी मेहनत से अपने टारगेट को अचीव किया. बच्चों बस लाइफ में लगे रहना है, अपने हार्डवर्क से सब कुछ अचीव कर सकते हो. बस विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. और वासु की इस कहानी से सीख के मेरी विशेष है कि आप भी बस मेहनत करते रहें और अपनी मंजिल को अचीव करें.